Here the life cycle of Plasmodium vivax that causes the disease malaria. So malarial parasite, let me know how many of you are knowing about the malarial parasite that is present in the malaria, that is present in the mosquito actually, and that's the female mosquito. Let me know, can anybody tell me the name of that mosquito that causes this disease? Female Anopheles For mosquito. Anopheles, sir. Anopheles Female mosquito. Anopheles. Exactly, Anopheles mosquito, sir. exactly. Female So Anopheles mosquito. and that was MD Cafe who told me the first that female Anopheles mosquito. So let me know the reason why this female mosquito used to bite the humans and spread this disease. What is the reason for that? Why don't male mosquito bite us? What what is the reason behind this? Anyone? Because Whatever in your mind you can. Yes, Jayaprakash. मेल मस्कीटो के पास प्रोटीन टाइप का माउथ नहीं होता है। Sir, female mosquitoes जैसे कि To require complete their hemoglobin. sexual cycle. No, that is also correct to complete their sexual cycle, but they Female don't have. mosquitoes bite humans to nourish their young ones. Exactly, Srishti, exactly. So Srishti is very correct because female mosquito needs some nutrition that is available in the blood, and that is important for that sexual cycle. Actually, MD Cafe also told that to complete the sexual cycle, that takes place in the mosquito body. So for their reproduction, that is important for them to take the blood from the humans, and as you know that in human bloods all the nutrients are present, all the required nutrient that they need for the nourishment of their uh, zygote and for the development of the egg, that is very important. So that's why the female mosquito used to bite the humans. Is that clear to all of you? Okay. Yes, sir. So now moving to the next slide. Here there is some history about this, that the Charles Louis Al- Alphonse, the name is somehow different, that is Charles Louis Alphonse Lavran, that discovered the malaria was caused by the protozoan parasite in 1880. So in 1880 he discovered that the malaria is caused by the protozoa, and you are knowing about that, the name of that protozoa. What is the name of the protozoa? Yes. Plasmodium vivax. Yes. Plasmodium. So actually Plasmodium vivax is a particular species that causes this malaria to us. So if we talk about the world level, so here the risk of Sir, malaria. Plasmodium falciparum भी तो है ना? Yes, falciparum also. There are 4 or 5 species of the Plasmodium that causes this disease. Yes, Risika, you're correct. So here you see that the red mark, that is the countries who are in the high risk of malaria. Here India also come in that. So these are the parts where the risk of malaria is very high. But what about these places? They are malaria free. So the reason is that they are knowing how to prevent the malaria. So we will talk about how we can prevent the malaria. Okay, so if we talk about the epidemiology, that 40% of the world population live in endemic areas. So we have talked about that the red area, that was the endemic area, and that covers the 40% of the world population. Even the 300 to 400 million new clinical cases per year arises, and due to that 2 to 3 million death occurs every year. So that's a very large number. So it is increasing, it is an increasing problem because of the resurgence and drug resistance. Also, as we understand the drug resistance, just because we are using some drugs and that is not killing the 100% mosquito, and they again give rise to the new mosquito and they have the resistance. Anybody can tell me how the resistance develop? If anyone is knowing, if we take some antibiotic Mutation. and doctor prescribe us, let me clarify this once again. Doctors always prescribe you to complete the doses of the antibiotic. Did you hear that about this? You are knowing that doctor, whenever doctor Yes, gives sir. you some antibiotic, he says you that complete this, take all the medicine. But
we take 1 or 2 medicine and we feel good, so we do not need some more antibiotics. So why they say like that, and what is the importance of that? Anyone? क्या कोई बताओगे क्या मतलब क्यों डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि आप पूरा आपको ख़त्म करना ही है, एंड अगर ठीक भी हो जाता है फिर भी आपको ये एंटीबायोटिक खाना है पूरा? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? क्या कोई बताओगे? सर जो पैरासाइट Yes, जो पैरासाइट please. होता है उसका इम्यून रिस्पांस ले लेगा ड्रग के खिलाफ, इस वजह से कहा जाता है कि पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। Yes, Risu, you are correct, but not up to the mark. Actually, what happens if we talk about some bacteria that infested in our body, and we have taken some antibiotic, and that antibiotic has killed more than 50% of the bacteria. So now what? Now we will not feel like कि हमें कोई बैक्टीरिया है क्योंकि उसका नंबर कम हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़त्म हो गया। ठीक है, वी हैव टू टेक मोर मेडिसिन टू किल द रिमेनिंग वंस। जो 50% से अगर कम हो गया तो उनका सिम्टम्स नहीं दिखेगा, हमें पता नहीं चलेगा, बट स्टिल दे आर प्रेजेंट देयर। सो इफ़ दे आर प्रेजेंट देयर एंड वी हैवंट टेकन सम मोर एंटीबायोटिक्स, व्हाट विल हैपन? दे विल डेवलप सम रेसिस्टेंस ओवर इट। जो बच गए उसे पता है कि अच्छा ऐसे मर गए थे, इस बार नहीं मरेंगे, इस बार वो तैयारी करके वो अपना पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, एंड दिस टाइम दे हैव द रेसिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग। सो इस बार क्या होगा, हम सेम एंटीबायोटिक ले रहे हैं सेम बैक्टीरिया के लिए, बट दिस इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल। द रीज़न इज़ दैट पर्टिकुलर bacteria or that particular mosquito, that particular insect, that particular species has developed the resistant of that particular drug. I am clear to you? Yes, sir. Okay, so it is very important that कि हम कोई भी ड्रग लेते हैं so उस पर हमें उसका पूरा डोज कंप्लीट करना चाहिए। So let us talk about the transmission, how it is transmitted. So as you know, as Risika told, some more species also that causes malaria. Yes, of course. So all species are transmitted by the bite of an infective female Anopheles mosquito. So as you know that we will talk about the mosquito, female Anopheles mosquito, from where they carry these plasmodium, from where they carry these protozoa, and how this develop and what is the procedure of that. Everything we will talk about here. So occasionally transmission by blood transfusion also takes place. Some if anybody having the sporozoite it present in their blood, and if that the transfusion of blood taken place, they given blood, donated the blood, and so that is the chance. Occasionally it happens. And needle sharing or from mother to fetus, it also been reported that some mother transmitted this disease to their babies. So now let us talk about the symptoms. What are the symptoms of malaria? So let me know, who will tell me the symptoms? What are the symptoms different? You can you don't have right Sir, now. high Yes. fever होता है, high Yes, fever, yes. High high fever. fever, chill and high fever generally for 3 to 4 days रहते हैं. Yes, 3 to 4 days रहता है. Okay, anybody who have encountered with this malaria disease any time in their life? कोई बताएगा अपना एक्सपीरियंस जिसे मलेरिया हुआ था? हाँ, कोई मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो? चलो मैं ही करता हूँ अपना. What happened once, I was infected from malaria and मुझे बुखार आता था बहुत, and I used to take the medicine और फिर ठीक हो जाता था. फिर शाम में बहुत पसीना आता था, बहुत ज़्यादा पसीना, दैट इज़ स्वेटिंग है. तो इतना पसीना आता था लगता कि बुखार ख़त्म हो गया. और नॉर्मली हम ऐसा फील भी करते कि अगर पसीना आया तो हमारा बुखार ख़त्म हो गया. बट अगेन बहुत ठंडी लगती थी, बहुत तेज़, और फिर इतना तेज़ कि मतलब कितना भी कंबल उड़ा दो ठंडी मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा, इतना तेज़. और फिर फीवर, बहुत हाई फीवर होता था, एंड ऑफ कोर्स मस्कुलर पेन होता था, बहुत थकावट महसूस होती थी, बैक पेन होता था, इवन बहुत सारे केसेस में वॉमिटिंग भी होता है ना. और कहते हैं स्प्लीन का इनलार्जमेंट होता है. वी विल टॉक अबाउट कि व्हाई इट हैपेंस, व्हाई स्प्लीन इनलार्जमेंट टेक्स प्लेस. और लेट मी क्लैरिफाई हेयर ओनली. क्या होता है ना कि इन दिस डिजीज़ some of the RBCs are destroyed actually, and you are knowing that कि spleen क्या है, graveyard of red blood cell. You are knowing that, RBC. है ना? Yes, sir. Yes. So that is the reason कि वहाँ पे बहुत सारे spleen का डेथ हो जाता है, तो वो बड़ा हो जाता है spleen, क्योंकि वहाँ पे समझो कि दफना आ जाता है तो जगह तो चाहिए ना ज़्यादा.
सो दिस हैपन्स इन द मलेरिया. सो वेन एवर यू फील कि बहुत ठंडी लग रही है और बुखार भी आ रहा है, फिर पसीना आ जा रहा है, फिर ठीक हो रहा है. सो ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या बात है कि हमें कुछ समय के लिए लगता है कि हमारा बुखार ठीक हो गया, फिर एकाएक अचानक से हमें बहुत सर्दी लगती है और हमें बहुत तेज़ बुखार लगता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर ऐसा होता है. तो वाई इट रिपीट्स, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, वी विल टॉक अबाउट दिस ऑल्सो. Okay, so these are the common symptoms we have talked, that is cycles of shaking, chills followed by fever and profuse sweating, hemolytic anemia and jaundice. In some case, why jaundice, हमारा body जो पीला पड़ जाता है, dark pigmented urine, stool become increasingly loose, hepatomegaly, that means our liver size increased, like that our splenomegaly, so spleen also size increased, headache and dry cough and weight loss. The most मोस्टली अगर रह गया 10 दिन तक तो हमारा वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है. इवन ब्लड ही डेथ हो रहा है, तो ऑफकोर्स हमारे सेल्स को कहाँ से मतलब ऑक्सीजन पहुँच पाएगा, एंड अल्टीमेटली जो है हमारा सेल जो है वेट लॉस होने लगेगा. हमारा बॉडी जो है दैट विल स्टार्ट टू ऑब्टेन द एनर्जी फ्रॉम द स्टोर्ड वन, है ना. नेक्स्ट, so if you talk about the incubation period of the parasite, so interval between inoculation of the sporozoite and appearance of the symptoms, that is called the incubation period. So incubation period हम उसको कहते हैं कि जब स्पोरोजॉइट हमारे बॉडी में एंटर किया एंड जब से उसका सिम्टम्स हमें दिखने लगा, दैट पीरियड इज कॉल्ड incubation period. So that differs in different species actually. Here we see that Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovule and Plasmodium malaria. So these all causes the malaria disease. So they have the different incubation period. So that incubation period varies from 7 to 14 days, and we are talking about the Plasmodium vivax, so we have to keep this in mind. You can get some multiple choice question over it. Okay, what is the incubation period of Plasmodium vivax? You can also get some question related to this falciparum also, what is incubation period of falciparum. So if you are preparing for the NEET, just take care of these things, just mark these things. You can get questions from this also. Shall we move further? So is there any confusion about the incubation period? We will talk about from when symptoms appear, when we will talk about the internal what happens internally actually. So वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये इंक्यूबेशन पीरियड का जो सिम्टम्स जो दिखने लगता है वो कब से दिखता है. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. चलिए आगे देखते हैं. So here you see that कि first mosquito, that the infected mosquito actually it have the protozoa, and that bites a first person, and from there that protozoa moves to the liver. Now liver will send that protozoa to the blood, and finally again that mosquito, if they bite that particular infected person, that sucks that protozoa, and again if they bite to this second person, so it will carry that protozoa to that particular person. So it happens like that, so one person to another person. Here I want to show you a video. Okay, so that video will clarify the everything whatever we have talked here. So just I am removing this presentation, and I want to show you the video here. Okay, where it is? Presentation नहीं दिख रहा है ना? Is it showing presentation? Say yes or no? No, sir. No. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Okay, मिल गया. With us since before we were human. Famous victims include. Let me know that कि ये वीडियो का वॉइस जा रहा है, ये मैं अनम्यूट कर रहा हूँ. Yes, sir. Voice is coming. Okay. वीडियो का No, sir. Your voice is coming, sir. No, sir. No, sir. only my voice is coming ना? Sir, नहीं आ रहा है. Yes, sir. The malaria life cycle follows a devious path, swapping back and forth between mosquitoes and humans. ओके तो चलो मैं बताता हूँ क्या
यहाँ पे बताया जा रहा है This कि mosquito is infected with ये malaria मॉस्किटो जो है ये parasite. इन्फेक्टेड है प्लाज्मोडियम वाइवक्स से, Because she is और pregnant, ये she प्रेग्नेंट है becomes hungry तो for इसे human blood. ये बहुत भूखी है, दे नीड फूड, सो ये ब्लड सक कर रही है फॉर द नरिशमेंट ऑफ देयर एग. सो ड्यूरिंग द सकिंग ऑफ द ब्लड She injects saliva ये to अपना stop सलाइवा blood इंजेक्ट from करती है clotting. इसमें, रीज़न है कि ताकि वो ब्लड क्लॉट ना हो. Her infected saliva ठीक है. also carries the अब वो malaria इन्फेक्टेड parasite. सलाइवा क्या करता है, वो कैरी कर जाता है प्लाज्मोडियम वाइवक्स, है ना. सो वो रीज़न कई बार ये पूछा जाता है कि वाई दे रिलीज दी सलाइवा इन दैट ब्लड, ताकि वो ब्लड क्लॉट ना हो. जब वो खींच रहे होते हैं ब्लड, एक्चुअली डैमेज हुआ हमारा, जब भी पंचर होगा हमारा वेन, तो हमारे बॉडी का प्लेटलेट्स का क्या काम है, इट विल स्टार्ट टू क्लॉट दैट, एंड फॉर दिस रीज़न दे रिलीज दी सलाइवा सो दैट कि ब्लड क्लॉट ना हो, ये आराम से ब्लड को ले सके. आई एम ऑडिबल टू यू? Yes, sir. Yes, sir. सो इसी केस में जब सलाइवा वो इंजेक्ट करती है, Parasite वहाँ से वो rides the पैरासाइट bloodstream like a ब्लड network of roads, स्ट्रीम में चला seeking गया, its first एंड नाउ target. दैट विल रीच टू द फर्स्ट टारगेट, दैट इज Blood द filter system, the लीवर, liver. जहाँ पे ब्लड का हमारा फिल्टर सिस्टम कह सकते हो कि डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है. सो दैट इज़ द रीज़न वहाँ पे ब्लड हमारा मूव करता है पहले. नाउ यू सी दैट द पर्टिकुलर जो प्लाज्मोडियम वाइवक्स है वो Sensing its हमारे arrival यहाँ पे at the liver, पहुँच गया है लीवर में. parasite searches for an exit. सो इट इज़ सर्चिंग फॉर द एग्जिट कि ये कहाँ से निकले, बट स्टिल इट इज़ नॉट गेटिंग द एग्जिट, सो इट विल इन्वेड आवर लीवर सेल. सो ये पर्टिकुलर लीवर A सेल में चला sentinel जाएगा. Kupffer cell is the entry point to liver देखो tissue. कफर सेल से ये लीवर सेल में एंटर कर गया. सो समटाइम्स ये पूछा भी जाता है कि लीवर सेल में वो प्लाज्मोडियम कौन से सेल के थ्रू हेल्प किस सेल के हेल्प से एंटर करता है, दैट इज कफर सेल. The parasite infects a liver cell, अब killing one or more other cells. जो in its ये body. हमारे सेल को इन्फेक्ट करते हैं और उस सेल को किल करेंगे. पर्टिकुलर उस सेल को Over the देखो next few days, किल कर the चुके हैं. parasite undergoes Now- hundreds of nuclear divisions. बहुत सारे इसका न्यूक्लियर डिवीजन होगा. एक्चुअली व्हाट हैपेंस इनसाइड आवर लीवर, इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द मॉस्किटो बॉडी एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लाज्मोडियम टेक्स प्लेस इनसाइड आवर ह्यूमन बॉडी. तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसे साइजोगोनी कहते हैं, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे. एंड यस, प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा? No, sir. अरे एक मिनट. सो दे आर सकिंग. देखो इसका प्रोबोसिस कैसा है. This mosquito is infected with the malaria parasite. It is already infected with the malarial parasite. Because And- she is pregnant, she has become hungry. She is for taking the human blood, and for taking blood, it have to puncture and have to release the saliva, and saliva having Right. She injects that- saliva to stop the blood from clotting. yes, saliva क्या करेगा, blood clot को रोकेगा. And Her in that infected sense, saliva that also carries the parasite malaria parasite. is entered into the blood. The parasite rides the bloodstream like a network And of roads. from this seeking blood its stream, it will first reach to target. the first target, that is Core of your liver. body's blood filter system, है ना. the liver. अब यहाँ पे लीवर में क्या होगा, ये जो कह रहा था कि कैसे ये बच जाते हैं. यस ऑफ कोर्स हमारा जो लिम्फोसाइट है दैट इज़ पेट्रोलिंग एवरीवेयर, एंड तो यहाँ पे ये बचेंगे जैसे ये एंटर कर जाएंगे हमारे Parasite searches for an लीवर exit. सेल्स में, और वहाँ पे ये अपना स्काइजोगोनी बनाएंगे. स्काइजोगोनी मीन्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे एंड मेक्स थाउजेंड्स ऑफ A sentinel Kupffer cell is the कफर सेल entry के थ्रू point to ये एंटर liver करेगा tissue. लीवर सेल में. Leaving the blood, the parasite infects a liver cell, killing one or more other cells on its way. So in that case it also destroys the liver cells. Over the next few days, the parasite undergoes hundreds of nuclear divisions. So it copying undergoes its hundreds of over nuclear and division over again. and DNA copies होते हैं and over again. Now it will release thousands of that, A single infected liver cell can create thousands of new parasites. है ना, new parasites release करेंगे. So cryptozoite कहते हैं इस जगह पे इसे. The next generation of parasites are modified to infect a new target, So now it will again red blood cells. अब इसका नया टारगेट कौन है, रेड ब्लड सेल. सो क्रिप्टोमेरोजॉइट इसे कहते हैं जो रिलीज हुआ है
इट विल नाउ इन्फेक्ट द रेड ब्लड सेल. सो ये जो है माइक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइट है एंड इट विल इन्फेक्ट द रेड ब्लड सेल ऑफ आवर बॉडी. अब ये रेड ब्लड सेल के अंदर चला गया तो ये बच गया हमारे WBC, है ना. सो इसी से ये हमारे इम्यून सिस्टम से बच जाते हैं जब हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर ये चले गए. एंड देयर आल्सो इट चेंजेस इनटू ट्रोफोजॉइट. और इसके RBC के अंदर ये सिंगलेट रिंग स्टेज बनाते हैं जिसमें होमोजॉइन रिलीज करते हैं एंड दैट होमोजॉइन जो है टॉक्सिक है हमारे RBC के लिए, पॉइजन कह सकते हैं उसे. सो इनसाइड दैट इट ऑल्सो मैच्योर होते हैं, एमोबॉइड स्टेज साइजॉइंट बनता है एंड फाइनली इट रिलीजेज मेरोजॉइड्स. इसमें से बहुत सारे मेरोजॉइड रिलीज हुए. दैट मेरोजॉइड अल्टीमेटली विल बी सक्ड बाय द मॉस्किटो. अब यही मेरोजॉइड जो है वो गैमेट्स बनेंगे. सो जब अब कोई दूसरा मॉस्किटो इसे बाइट कर रही होती है तो वो क्या करेगी, सेम मेरोजॉइड जो वहाँ पे RBC में डेवलप हुए थे दैट इज नाउ सक्ड बाय दैट मॉस्किटो. सो एक्चुअली ये वेजिटेरियन होता है. दे यूज नेक्टर, हनी ड्यूज, बट प्रेग्नेंट मॉस्किटो बाइट करती है ह्यूमंस को. इन्हें चाहिए न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्लड टू नरिश देयर एग. दैट इज द रीजन. So here you see the ovary and stomach. And inside the stomach blood है. अगर ये infected है तो ये भी infected हो जाती है disease से. What happens? Let us see inside it. The tiny drop of blood filling the insect's stomach is teeming with malaria parasites. वो जो blood है जो ये suck की है उसमें क्या है? मेरोजॉइड जो हमारे RBC में हुआ था. अब ये मेरोजॉइड दो तरह के होते हैं, माइक्रो एंड मेगा मेरोजॉइड. सो दैट माइक्रोगेमेटोसाइट जो है मेरोजॉइड जो माइक्रोगेमेटोसाइट बना दैट विल कन्वर्ट इनटू द मेल एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू फीमेल में. देखो जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन इसमें क्या हुआ था, RBC के अंदर ये डेवलप हो रहे थे. So some of them will develop into male and some will develop into the female gametocyte. तो ये मलेरिया के स्टोमक में हो रहा है. So one of the RBC converted into the female gametocyte and one of the RBC converted into male gametocyte. So male form को थोड़ा longer समय लगता है mature होने में, but now it will मूव इनटू दी. ये देखो मेल आ रहा है, मेल का स्पर्म आ रहा है, दैट विल मूव इनटू दैट दिस. यस. अब इसमें जाने के बाद इट जस्ट फर्टिलाइज हो गया, है ना. यस. सो फर्टिलाइजेशन होने के बाद दैट विल जाइगोट फॉर्म होगा, पता है सबको. एंड ये इसका शेप चेंज हो गया. नाउ इट विल इसके स्टोमक से निकल करके वाल में इन्वेड करके फाइनली बाहर आ जाएगा, सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा. देखो ये इसके वॉल से, स्टोमक के वॉल से बाहर आ रहा है. वी विल सी दिस इन डायग्राम आल्सो. वहाँ से मूव कर रहा है वो, क्या है, जाइगोट है, वो काइनेट कहते हैं इसे. और ये स्टोमक को पार करके आउटर लाइनिंग में आ गया और यहाँ पे ये सिस्ट बन जाएगा. अब ये सिस्ट के अंदर उसका डेवलपमेंट होगा फाइनली एंड रिलीज हो गया ये स्पोरोजॉइट अगेन. अब अगेन ये मॉस्किटो किसी हेल्दी ह्यूमन को काटेगी और उसमें ये स्पोरोजॉइट, ठीक है. और ये छोटे छोटे पैरासाइट वही है क्या, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है. ये इसके सलाइवा में आ जाएंगे जैसे ही वो स्टमक को पार कर चुके हैं. अब ये अगेन अगर ये किसी को बाइट करती है एंड देयर The next time this mosquito bites a victim, the malaria parasite will ride in with her saliva and infect another human. नेक्स्ट टाइम जैसे ये काटती है किसी को, फिर से उसके बॉडी में स्पोरोजॉइट जाता है एंड सेम साइकिल रिपीट्स. आई एम ऑडिबल टू यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो ये था ओवरऑल जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं. ये समझने के लिए था, ये वीडियोस आप लोग देखें, शायद मुझे लगता है थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. अब आते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे.
जो हमारा प्रेजेंटेशन था कहाँ गया? ओके, लेट मी प्रेजेंट इट वंस अगेन. Okay, confirm me that it's visible. Is it visible? Presentation is visible, yes or no? Presentation is visible. Yes, presentation is visible or not? Yes, sir. Visible. Yes, Yes, sir. it is, sir. Yes. Yes, here I want to take a question. Yes, Gitanjali Kumari. Sir, how we will identify that it is Anopheles mosquito? Yes. So for identification, actually what happens whenever a mosquito sit over our body to bite us, so how can we identify that particular insect is infected or not? If it is biting us, so it may be the pregnant mosquito, so it needs some blood. But how can we identify a particular mosquito as a infected by the Plasmodium vivax? तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं? सो यू कैन सी दैट कि सम मॉस्किटो व्हेन एवर बाइट्स यू, उसका एब्डोमेन जो है इट विल मेक अ एंगल विथ अस. देखो मैं बताता हूँ, ये ना एक एंगल बनाता है हमारे बॉडी. कहाँ गया मेरा पेन? यस, इट मेक्स अ एंगल. जैसे मान लो ये हमारा बॉडी है, ठीक है, और ये मॉस्किटो है, ये इसका पंख और ये इसका एब्डोमेन. सो इट मेक्स अ एंगल. एक्चुअली ये एक एंगल बना रहा है, मान लो 30 डिग्री का एंगल हो, 45 जो भी हो. बट इफ़ इट इज़ पैरेलल, इसका जो स्टोमक ये वाला जो है जहाँ पे ब्लड है, ये अगर ये पैरेलल है हमारे बॉडी के, दैट मीन्स इट इज़ इन्फेक्टेड विद द प्लाज्मोडियम वाइवक्स. ये माना जाता है. ठीक है गीतांजलि? Okay, sir. ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं. ओके, सो वी आर नोइंग अबाउट द सिम्टम्स ऑल्सो. इंक्यूबेशन पीरियड हमें पता है, और हमें पता है कि मॉस्किटो जो है, जैसे यहाँ पे हम लोग वीडियो में देख चुके हैं कि क्या हुआ है एक्चुअली. व्हाट हैपेंस दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मॉस्किटो बाइट्स अस एंड इट रिलीज दिस स्मॉल स्पोरोजॉइट्स. दीज आर दी स्पोरोजॉइट्स, छोटे छोटे स्पोरोजॉइट्स हैं. इट विल इंटर्स दी लीवर. सो इसको हैप्नोजॉइट करें क्योंकि हमारे लीवर में जा कर के ये कुछ समय तक रह जाते हैं, है ना. दैट्स वाई इट टेक्स सम टाइम्स फॉर इंक्यूबेशन. नाउ इट विल अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू मेरोजॉइट्स, जो कि जा कर के हमारे आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे. तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि स्पोरोजॉइट्स कन्वर्टेड इनटू मेरोजॉइट्स वेयर इनटू द लीवर सेल. क्या क्या क्वेश्चन आएंगे मैं बताऊंगा. सो इट कन्वर्टेड दैट स्पोरोजॉइट्स converted into the merozoites. Now that merozoites infected that RBC, that is erythrocyte. Now it will convert into the trophozoite. erythrocytic cyzoid बना and finally ये rupture करके निकलेगा बाहर and it will form gametocyte. So some male, it's a female actually, and it's a male gametocyte, and it will be again sucked by this mosquito. So this was the asexual cycle. Asexual cycle, that means here the skyjoint की बात जो हम कर रहे हैं, so that is asexually, so multiple fusion हो रहा है, चाहे लीवर में हो चाहे हमारे आरबीसी में हो. बट हेयर जैसे ही ये गेमेटोसाइट लिया तो एक मेल है एक फीमेल है इसके हमारे आरबीसी में, दैट विल कन्वर्ट इनटू मेल एंड फीमेल, जो जैसे कि हम लोग देख चुके हैं. अब ये माइक्रो गैमेट जो है वो मेल बनेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू मेल, एंड मैक्रो गैमेट जो थोड़ा साइज में बड़ा है दैट विल कन्वर्ट इनटू फीमेल. ठीक है. नाउ इट विल अल्टीमेटली फॉर्म अ जायगोट, और ये मॉस्किटो के गट से बाहर आकर के उस सिस्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, एंड दैट अगेन सिस्ट विल रिलीज दी स्पोरोजॉइट्स, बहुत सारे स्पोरोजॉइट्स, एंड अगेन इट विल बाइट अ हेल्दी ह्यूमन एंड रिलीज दिस. सो दिस साइकिल कंटिन्यूसली. तो यहाँ पे क्या हुआ, सेक्सुअल साइकिल हुआ कि मेल फीमेल गैमेट मिक्स हो रहा है. ठीक है, इसे और थोड़ा डिटेल में देखेंगे. ओवरऑल यहाँ पे समझ में आया एसेक्सुअल और सेक्सुअल? Yes, sir. ओके, इसको और Yes, थोड़ा sir. और थोड़े से डिटेल में चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन आते हैं थोड़ी डिटेल से, इस वजह से. चलिए नेक्स्ट है
सो लाइफ साइकिल ऑफ दिस पैरासाइट इज डाइजेनेटिक. जैसा कि शुरू में ही किसी ने कहा था मुझे, सर इट्स डाइजेनेटिक. यस, ऑफ कोर्स इट्स डाइजेनेटिक. दैट मीन्स इट कंप्लीट्स इन 2 होस्ट. सो फर्स्ट इज ह्यूमन एंड सेकेंड इज Mosquito. mosquito. So actually asexual phase of cycle takes place in humans. So it includes 2 phase. 2 phase क्या? एक तो लीवर साइजोगोनी मैंने बताया ये एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि मल्टीपल फ्यूजन होगा. एक पर्टिकुलर सेल जो है बहुत सारे में कन्वर्ट हो जाएंगे. टेक्स प्लेस इन लीवर सेल्स. तो सबसे पहले लीवर साइजोगोनी दैट विल टेक्स प्लेस इन द लीवर सेल एंड फॉर्म्स मेरोजॉइड्स एट द एंड. फाइनली क्या बनाएगा? मेरोजॉइड्स. नाउ दिस मेरोजॉइड्स विल एंटर्स इनटू द आरबीसी. ठीक है. सो दैट विल बी कॉल्ड एज द इरिथ्रोसाइट. एज यू आर नोइंग दैट इरिथ्रोसाइट हम लोग किसे कहते हैं? आरबीसी को कहते हैं. ये पता होगा है ना. आरबीसी का अदर नेम इज इरिथ्रोसाइट. सो नाउ दिस मेरोजॉइड व्हेन एंटर्स इनटू द आरबीसी अगेन साइजोगोनी विल टेक्स प्लेस. दैट मीन्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस एंड नंबर्स इसके बढ़ेंगे. सो फॉर्म गैमेटोसाइट. तो फाइनली क्या बनाते हैं? गैमेटोसाइट एट द एंड. सो ये माइक्रो गैमेटोसाइट बनाएंगे और मैक्रो. तो माइक्रो जो बनाएंगे, माइक्रो क्या बनेगा? माइक्रो विल कन्वर्ट इनटू मेल. Male. एंड मैक्रो जो बनेगा वो क्या बनेगा? Female. यस, फीमेल. बस ये क्लियर होना चाहिए कि मेरोजॉइड्स जो लीवर साइजोगोनी में मेरोजॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है. मेरोजॉइड्स इनफैक्ट दी आरबीसी एंड आरबीसी में जब इसका साइजोगोनी हो रहा है इट कन्वर्ट्स इनटू गैमेटोसाइट एंड दैट गैमेटोसाइट अगर माइक्रो है दैट इज द मेल एंड मैक्रो है दैट इज द फीमेल. इफ़ वी टॉक अबाउट द मॉस्क्यूटो, सो मॉस्क्यूटो में जब ये गैमेटोसाइट लिया गया है ना, सो सेक्सुअल फेज होगा उसमें है ना. सो फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो इट इंक्लूड्स गैमेटोगोनी और स्पोरोगोनी. सो गैमेटोगोनी मीन्स व्हाट? पहले गैमेट्स मिलेंगे और जाइगोट फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्शन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. तो पहले तो गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा जिस आरबीसी में जो पहले से था दैट विल कन्वर्ट इनटू मेल, कुछ दैट विल कन्वर्ट इनटू फीमेल. सो जो माइक्रो रहेगा दैट कन्वर्ट इनटू मेल गैमेट एंड जो मैक्रो था दैट कन्वर्ट इनटू फीमेल गैमेट एंड द फ्यूजन विल टेक्स प्लेस. सो दैट इज कॉल्ड गैमेटोगोनी. फाइनली स्पोरोगोनी क्या? फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजॉइड्स दैट इज इन्फेक्टिव फॉर्म. तो स्पोरोगोनी कब होता है? जब वो स्टोमक से पार करके, स्टोमक को वाल को पार करके बाहर जब सिस्ट फॉर्मेशन कर रहे थे, देयर स्पोरोजॉइड्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड दैट इज कॉल्ड स्पोरोगोनी. वी विल सी अगेन दिस डायग्राम. आगे बढ़े. ओके, यस सर. नेक्स्ट. सो हेयर देखो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवक्स. एज वी आर नोइंग दैट कि ये 2 होस्ट में हो रहा है. एक तो ह्यूमन एंड अनदर इज मॉस्क्यूटो. तो ये मॉस्क्यूटो है, यहाँ पे सेक्सुअल साइकिल हो रहा है इसके बॉडी में. तो सेक्सुअल साइकिल में हम लोग 2 चीज़ देखेंगे. एक तो ये देखेंगे गैमेटोगोनी एंड दूसरा देखेंगे स्पोरोगोनी. ये कट गया शायद, दिख नहीं रहा. और हम लोग यहाँ पे ए सेक्सुअल साइकिल देखेंगे ह्यूमन के केस में. ठीक है. सो एसेक्सुअली साइजोगोनी जो हो रहा है वो कितनी तरह के साइजोगोनी होंगे वो हम लोग देखेंगे. जैसे कि यहाँ पे प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, मतलब इरिथ्रोसाइट पहुँचने से पहले जो साइजोगोनी हो रहा है वो ऑफकोर्स लीवर में होगा. इरिथ्रोसाइट समझ में आ रहा है ना? अगर आप इरिथ्रोसाइट समझ रहे हो तो सारे टर्म्स आपको क्लियर होंगे. से यस. सो प्री इरिथ्रोसाइटिक, प्री मीन्स बिफोर रीचिंग द इरिथ्रोसाइट. सो प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी ऑफ कोर्स इट टेक्स प्लेस इन लीवर. सो लीवर में क्या हो रहा है? जैसे ये मॉस्किटो काट रही है, इसका जो स्पोरोजॉइड्स है वो इंटर्स इनटू द लीवर. लीवर में अब क्या है? ये जो स्पोरोजॉइड्स लंबा करके था अब ये गोल हो गया एंड नाउ इट इज कॉल्ड क्रिप्टोजॉइड. क्या कहा जा रहा है? क्रिप्टोजॉइड. नाउ इट दिस क्रिप्टोजॉइड का साइजोगोनी होगा. ये क्रिप्टोजॉइड मतलब मल्टीपल फ्यूजन होगा, बहुत सारे क्रिप्टोजॉइड बनेंगे. अब ये जो बहुत सारे बन रहे हैं इसे कहते हैं क्रिप्टो मेरोजॉइड. यस, क्रिप्टो मेरोजॉइड. ये क्रिप्टो मेरोजॉइड जो निकले हैं अब ये जो है ये फिर से दूसरे लीवर सेल को इन्फेक्ट करेंगे. ठीक है. ये अगेन तो अब इसमें भी है कि मैक्रो क्रिप्टो मेरोजॉइड, माइक्रो क्रिप्टो मेरोजॉइड. ठीक है, 2 तरह के बनेंगे. तो क्या होता है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊँ. माइक्रो क्रिप्टो मेरोजॉइड जो है वो रिलीज़ हो जाता है आरबीसी को इन्फेक्ट करने के लिए. ठीक है. सो पहले तो देखो, एक तो प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी हुआ एक बार में जब
क्रिप्टोमेरोजॉइट बना। यहाँ तक क्लियर है? नाउ अगेन इट विल इन्फेक्ट अनदर लिवर सेल, ये पहला लिवर सेल को इन्फेक्ट कर चुका, अनदर लिवर सेल को इन्फेक्ट करेंगे, उसे कहते हैं एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। अभी भी इरिथ्रोसाइट तक नहीं पहुंचा है, इसलिए इरिथ्रोसाइट से बाहर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। हेयर दिस क्रिप्टोमेरोजॉइट जो है ये दो तरह में कन्वर्ट होंगे, एक मैक्रो में और एक माइक्रो में। मैक्रो जो है ये फिर से अगेन अनदर लिवर सेल को इन्फेक्ट करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। अगेन लेट मी टेल यू दैट कि जब क्रिप्टोजॉइट, आई एम ऑडिबल टू यू? Yes, sir. यस सर। जब लीवर में क्रिप्टोमेरोजॉइट बना लीवर में, वो क्रिप्टोमेरोजॉइट जो है दैट विल अगेन इन्फेक्ट अनदर लिवर सेल, ठीक है, तो दूसरा लिवर सेल को फिर से इन्फेक्ट कर रहा है, तो उस स्टेज को कहते हैं एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। मतलब स्टिल इट इज़ नॉट रीच टू द इरिथ्रोसाइट, अभी भी इरिथ्रोसाइट को नहीं पहुंचा है, इस वजह से एक्सो मतलब इरिथ्रोसाइट से बाहर, मीन्स लीवर में ही दूसरे लिवर सेल को। अब यहाँ पे क्रिप्टोमेरोजॉइट जो है इट विल कन्वर्ट इनटू मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो जो है वो अगेन अनदर लीवर सेल को इन्फेक्ट करेगा, जिसे कहेंगे एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। और ये जो माइक्रो क्रिप्टोमेरोजॉइट जो है दिस विल नाउ रीच दी आरबीसी। सो जो छोटा था, जो माइक्रो क्रिप्टोमेरोजॉइट था, दैट विल रीच दी आरबीसी एंड दैट विल बी कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। लेट मी क्लैरिफाई वंस अगेन, जैसे ही यहाँ पे स्पोरोजॉइट आया, जैसे ही लीवर सेल में पहुँचा, इट विल कॉल्ड एज क्रिप्टोजॉइट। क्रिप्टोजॉइट में साइजोगोनी होगा एंड इट विल रिलीज न्यूमरस क्रिप्टोजॉइट, बहुत सारे क्रिप्टोजॉइट बनेंगे जिसे क्रिप्टोमेरोजॉइट कहते हैं। दिस क्रिप्टोमेरोजॉइट अगेन इन्फेक्ट अनदर लिवर सेल एंड दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। एक्सो इरिथ्रोसाइटिक अभी भी क्योंकि इरिथ्रोसाइट पे नहीं पहुंचा है। अब ये एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी में दो क्रिप्टोजॉइट बनेंगे, एक तो मैक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइट, दूसरा माइक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइट। मैक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइट जो है दिस विल अगेन इन्फेक्ट द लीवर सेल एंड इट विल कॉल्ड एज एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। बट माइक्रो जो है वो रिलीज हो जाएगा हमारे ब्लड में और ब्लड में आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा एंड दैट इज कॉल्ड इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। चलो, तो यहाँ पे जब नाउ व्हेन इट विल रीच दी आरबीसी इट विल बी नाउ कॉल्ड एज ट्रोफोजॉइट। क्या कहते हैं इसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि ये जैसे ही माइक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइट जो है पहुंचता है आरबीसी में, इट इज़ कॉल्ड एज नाउ ट्रोफोजॉइट, दैट इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर द आरबीसी। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस ये जो है ये रिंगलेट स्टेज बनाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा वैक्यूल बनेगा और ये रिंगलेट स्टेज, सिंगलेट रिंग स्टेज कहते हैं इसे। और यहाँ पे ये हेमोजॉइन रिलीज करते हैं, हेमोजॉइन जो एक तरह से पॉइजन है। और मतलब यहाँ पे भी डिवीज़न इसका होगा, इससे पहले कि पहले सिंगलेट स्टेज बनाएगा, फिर ये एमोबॉइड स्टेज बनाता है। तो माना जाता है कि पहले इसमें वैक्यूल था बहुत बड़ा फूड स्टोरेज, फिर ये यूज़ कर गया, एमोबॉइड बन गया। अगेन इट विल डिवाइड, बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो गए ये अपने, ठीक है। और साइजॉइंट कहते हैं इस स्टेज को। नाउ हेमोजॉइन रिलीज़ होगा जिसके वजह से हमें चिल्स आते हैं, बहुत बहुत ज़बरदस्त ठंडी लगती है, बुखार आता है हमें। जैसे ये रिलीज़ होगा हमारे ब्लड में, हमें बहुत तेज़ बुखार आएगा, हमारे जितने भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी हैं हड़कंप मच जाता है उनमें, यार भाई ये क्या आ गया, कहाँ से आ गया। फिर उसे कंट्रोल करते हैं, जैसे फिर दूसरा आरबीसी ब्लास्ट कर जाता है, फिर उसमें से इतना सारे निकलते हैं, तो मतलब समझो कि तहलका मच जाता है पूरे बॉडी में। समझ रहे बात को? अगेन सो नाउ इट रिलीज है। फिर क्या कहते हैं, पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक, अब इसमें से भी जो है कुछ जाकर के हमारे लीवर सेल में जा सकते हैं और फिर से प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी रिपीट करेंगे। और या फिर यहाँ पे ये माइक्रोगैमेट और मेगा गैमेटोसाइट बनाएंगे जो कि ये सक करेंगे। कौन? दूसरा मॉस्क्यूटो। सक करने के बाद जब ये माइक्रो जो है वो यहाँ पे देखो ये स्पर्म बना रहा है, और मैक्रो जो थोड़ा बड़ा था वो क्या बना रहा है, फीमेल कोन रिसेप्शन, कोन की तरह है, ताकि ये इसमें से स्पर्म एंटर करे, ठीक है। और ये बन गया गैमेट, जिसे कहते हैं ऊकाइनेट। क्या कहते हैं? ऊकाइनेट, ठीक है। नाउ ऊकाइनेट जो है ये अपना शेप चेंज कर लेगा। पहले तो ये जो गैमेट बना, गैमेट जब कंबाइन हुआ, जब जायगोट बना वो गोल ही था,
जैसे ये यूकाइनेट में आएगा इट विल चेंज इट्स शेप सो दैट कि ये इसका वॉल को क्रॉस कर जाए. आफ्टर क्रॉसिंग द वॉल इट फॉर्म द cyst. Cyst. Yes, this cyst now will develop, finally develop होगा और ये क्या रिलीज कर रहा है? Sporozoites. Again it will come into the saliva and again it will bite a normal Healthy human individual. and ह्यूमन. ये ऐसे ही इसका साइकिल रिपीट होता है. ठीक है, यस सर. चलिए. सो ये हो गया सेक्सुअल फेज और सेक्सुअल फेज इनके बॉडी के अंदर. ठीक है. प्रिवेंशन. सो हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस? सो प्रिवेंशन के लिए आप यूज़ फ्लाइंग इंसेक्ट स्प्रे इंडोर आप यूज़ कर सकते हैं स्लीपिंग एरिया में. अवॉइड एरियाज वेयर मलेरिया एंड मॉस्किटो आर प्रेजेंट इफ़ यू आर एट हाई रिस्क. वेयर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग. यूज रिपेलेंट विथ DET. DEET क्या है? NN. DEET को कहते हैं NN डाई इथाइल मेटाटोल्यूएमाइड. यूज़ बेड नेट. ठीक है, तो ये आप देखो मॉस्किटो नेट यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्ट रेपेलेंट यूज़ करते हैं विंडोज़ को क्लोज करके, है ना, ताकि हम बच सकें. प्रोफाइलेक्टिक्स की अगर हम बात करें तो मेडिसिन जैसे कि प्रोफाइलेक्टिक्स आर ड्रग्स दैट यू कैन टेक टू प्रिवेंट मलेरिया. एज यू नो दैट मलेरिया का वैक्सीन नहीं है हमारे पास एंड विल स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग इट. सो इवन यू आर इन्फेक्टेड विथ प्लाज्मोडियम. सो आप प्लाज्मोडियम से इन्फेक्टेड हैं फिर भी आप प्रोफाइलेक्टिक ड्रग यूज़ कर सकते हैं. जैसे दिस ड्रग्स आर वेरिएशन ऑफ द ड्रग. जैसे क्विनीन, द मोस्ट कॉमन प्रोफाइलेक्टिक वेयर क्लोरोक्विनीन, है ना, एंड प्रोग्वानिल. सो बट मेनी प्लाज्मोडियम आर नाउ रेसिस्टेंट. बहुत सारे प्लाज्मोडियम इससे रेसिस्टेंट है. किससे? क्लोरोक्विनीन और प्रोग्वानिल से. सो नाउ डेज दिस डेज क्या है? मैफ्लोक्विन जो लैरियम है एंड मेलेरोन ये यूज़ हो रहा है. मेलेरोन और मैफ्लोक्विनिन यूज़ हो रहा है. तो ये आपको याद रखने होंगे कि प्रोफाइलेक्टिक के लिए, मलेरिया के लिए हम लोग प्रोफाइलेक्टिक ड्रग क्या यूज़ करते हैं. सो बेसिकली हम लोग क्लोरोक्विनिन और प्रोग्वानिल यूज़ करते थे बट नाउ डेज इनका रेसिस्टेंस हो गया उनमें. सो दैट वी यूज़ मैफ्लोक्विन एंड मेलेरोन. नाउ एनी क्वेश्चन यू हैव? बोलो. सर जैसे सर हमारे लिवर सेल को इन्फेक्ट करते हुए जा रहा था जो स्पोरोजॉइट है, तो नेक्रोटिक सेल नेक्रोट हो जा रहे थे. इस तरह से तो सर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो का भी हो सकता है. यस. सो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की बॉडी में जब वो ब्लड गया सो वहाँ पे वो किस स्टेज में पहुँच गया? गैमेटोसाइट के स्टेज में पहुँच गया. नाउ दैट विल फॉर्म द जाइगोट, है ना, दैट विल कन्वर्ट इनटू मेल और फीमेल और वो फर्टिलाइज होकर के गैमेट फॉर्म करेंगे, है ना. सो फाइनली इट विल क्रॉस द मेम्ब्रेन, स्टोमक मेम्ब्रेन, और वो जाकर के सिस्ट का फॉर्मेशन करेंगे और वहाँ पे स्पोरोजॉइट का डेवलपमेंट होगा, है ना. इज देयर एनी मोर क्वेश्चन? सर. यस फैजल. सर फीमेल एनोफिलिस में प्लाज्मोडियम के पैरासिटिज्म को लेकर के कौन सा फैक्टर है जो उसको फेवरेबल बनाता है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में क्या है कि एक्चुअली जब वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है, सो एक्चुअली दे आर नॉट एक्चुअली इन्फेक्टिंग देम, नॉट लेटिंग देम डू सम. एक्चुअली उनका वर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उन्हें पता भी नहीं चल रहा कि वो इन्फेक्टेड हैं एक्चुअली. सो दैट इज़ द एक्चुअली रीज़न कि वो इन्फेक्शन फैला रहे हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा. Yes, मतलब कि जो प्लाज्मोडियम है वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो को मतलब चुना अपने होस्ट के रूप में, सेकेंडरी होस्ट या वेक्टर के रूप में. तो सर कौन सा फैक्टर था जिसको जो मतलब वो प्रीफर किया? प्लाज्मोडियम. यस सर. सो प्लाज्मोडियम देखा कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ह्यूमंस को काट रही है एंड उनका डेवलपमेंट जो है वो ह्यूमंस में हो रहा है क्योंकि ह्यूमंस का जो ब्लड है वो न्यूट्रिशियस है. न्यूट्रिशन, जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए डेवलपमेंट के लिए वो मिल जा रहा है उन्हें. सो शायद ये वजह रहा होगा कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है वो ह्यूमंस को काट रहे हैं और वहाँ पे वो प्रॉपर डेवलप हो सकते हैं. सो दैट वाज द रीज़न.